Today our topic is finite difference operators. Okay, this is our today's topic. In it, we have considered the some points. में लिखते हैं, let us consider points x naught, x1, x2, x3, and so on up to xn are equally spaced. What is it means? It means the distance between what it means it means the distance between any 2 points means any two consecutive points, for example x0 to x1 or x1 to x2 or x2 to x3 are same. They are at equal distance. Okay, what I have said, suppose this is a line, this is x0, this is x1, this is x2, this is x3, and so on, this is xn. So what I am saying, if this distance is h, then definitely this distance is also h, and this distance is also h. So two consecutive points are apart same distance. So if I say it is x naught, so x1 I can replace x1 with x naught plus h, x1 लिख दो या फिर एक्स नॉट प्लस एच लिख दो, एक ही बात है। इधर एक्स टू लिख दो या फिर दूसरा क्या है एक्स नॉट प्लस टू एच, या फिर आप क्या लिख सकते हो उसको एक्स वन प्लस एच। सिमिलरली एक्स थ्री यू कैन रिप्लेस एक्स थ्री बाई एक्स नॉट प्लस थ्री एच और एक्स वन प्लस टू एच और एक्स टू प्लस एच। इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर नहीं है तो मुझसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई एम ऑडेबल टू ऑल ऑफ यू? ओके, ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली if I say this is x3, then x2 I can replace x2 by x3 minus h, एक ही बात है। और similarly this point x1 I can replace x1 by x3 minus 2h or x2 minus h. Similarly for the point x0, x0 we can write x3 minus 3h, is it equal to x2 minus 2h? This is equal to x1 minus h. So this is the scenario which we are going to study. Finite difference operator we are going to study, in which we assume this. Generally what we write all these things, generally we write here हम लिखते हैं एक्स आई इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस आई एच, where I is equal to 0, 1, 2 and so on। ठीक है, तो ये जो हमने यहाँ पर लिखा है इसको अगर हम वन लाइन में लिखना चाहते हैं तो वी राइट इट लाइक दिस। फॉर आई इक्वल टू, देखिए अगर हम लिखते हैं आई इक्वल टू 1
then it becomes x1 is equal to x naught plus h. If we put I equal to 2, then it becomes x2 is equal to x naught plus 2h and so on. यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग में किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए. That means it's clear to all of you. Now we move to some definitions. Your first definition is shift operator. What is shift operator? It is denoted by E. Okay, it is denoted by E. Or when we operate E operator over f of xi, then it will become f of xi plus h. Okay, this is the definition. It is denoted by E and defined by E of f of xi is equal to f of xi plus h. That means इसका एग्जांपल अगर हम देखना चाहें, अगर मैं यहाँ लिख दूँ E of f of x1, तो दिस विल बी हो जाएगा f of x1 plus h. What it means? It means f of x2. क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक इस ऑपरेटर में? Now another definition. The name of definition is forward difference operator. It is denoted by delta. Okay, it is denoted by delta. Delta of f of xi is equal to क्या होता है f of xi plus h minus f of xi. This is it means. Remember it is xi, तो जो भी यहाँ होगा उसी में h ऐड होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम चाहते हैं डेल ऑफ f of x2, तो इट विल बी f of x2 plus h minus f of x2. तो इट विल बी f of x3 माइनस f of x2. मीन्स जो यहाँ पर होगा वो इस जगह होगा और उससे नेक्स्ट वाला वो यहाँ होगा. ठीक. नेक्स्ट इज बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर. It is denoted by del. Okay, it is denoted by del and the defined by f of xi is equal to f of xi minus f of xi minus h. ओके, तो इसका एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो इसका एग्जांपल है del f of x3 is equal to f of x3 minus f of x3 minus h. What it means? It means f of x3 minus f of x2. तो रिमेंबर कि जो भी यहाँ पर आएगा वो इस पोजीशन पे आएगा और यहाँ पर एक उससे पहले वाला. ठीक है. जनरली स्टूडेंट्स डू मिस्टेक that they forgot the difference between forward difference operator and backward difference operator in exam. Okay, so please don't do that.
It's try to understand clearly what they do. Generally, what they do delta of f of xi is equal to f of xi minus f of xi minus h. They do this in the um, exam. Approximate 50% students every year. So be careful. This is not a definition of forward difference. This is the definition of backward difference. So don't do that. In forward difference, whatever is here, that will comes here, and in backward difference, whatever is here, that will come firstly. So be careful, especially on this point. Next is central difference operator. Central difference operator, it is denoted by delta. Okay, this is denoted by this and defined by delta of f of xi is equal to f of xi plus h by 2 minus f of xi minus h by 2. This is the definition. Okay, delta of f of central difference operator, delta f of xi is equal to f of xi plus h by 2, half distance हम ऐड कर देंगे, then subtract from it half distance को subtract करने के बाद. The example of it is delta f of x2 is equal to f of x2 plus h by 2 minus f of x2 minus h by 2. So this is the definition. Okay. Now last definition, average operator. Average operator is denoted by mu and it is defined by f of xi is equal to 1 by 2 f of xi plus h by 2 plus f of xi minus h by 2. Okay, so this is the average operator. एग्जाम्पल आप इसका भी लेना चाहें तो ऐसे ले सकते हैं, म्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स टू is equal to 1 by 2 f of x2 plus h by 2 plus f of x2 minus h by 2. So this will be average operator. So all of you please click the picture because I have to change the page and then we will do the question. Any doubt, any query till now? Please let me know. Okay, so let's move to next. There are some questions. Verify number one, del f of I is equal to del f of I plus 1 is equal to delta f of I plus 1 by 2. Second one is del is equal to E minus 1. Third one is equal to del is equal to 1 minus E inverse. Then fourth is
delta is equal to e half minus e to the power minus half, and the last one is equal to mu equal to 1 by 2 e half minus plus e minus half. Every year one question comes from this topic. Okay, so this is the formula. All these are formulas. Okay, all these first to fifth. So you have to remember all these formulas for doing the questions. So we all these you should remember all these five formulas. Now we are going to see the proof of these formulas. Now we are going to see the proof of these formulas. After that we will do the questions. Okay. आप लोग क्लिक करना चाहें तो कर सकते हैं इसको फॉर्मूलाज के पिक्चर को. ठीक है, चलिए अब हम पहले फॉर्मूले को प्रूफ करते हैं. हमारा जो पहला फॉर्मूला है वो है जिसे हमें प्रूफ करना है, दैट इज डेल एफ आई इज इक्वल टू डेल एफ आई प्लस वन इज इक्वल टू डेल एफ ऑफ आई प्लस वन बाई टू. ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू प्रूव. Okay, so let's see how we will prove. First part, how we find out the value of f of I. What is it means? Del, anybody can tell me what is the meaning of fi? No. The fi means f at the value of f at xi. Okay. Now, anybody can tell me what is I should write next line. Del of f of xi is equal to, very good, minus f of xi. Yeah, my. That means I can write it as f of xi plus 1 minus f of xi plus 1 minus h. I can write it like this. Why I am doing this? Because we want to prove this should be equal to del fi plus 1. Okay? Here is the I plus 1. So what is mean? It means del f of xi plus 1. Okay, what it means? f of it means f of xi plus 1 minus f of xi plus 1 minus h. So we have to make this. So we are going to make here. Okay, so all of you know this becomes this one, and this is the formula of what I should write. Del f of, यहाँ क्या आएगा, x, correct, I plus 1. Very good. This should be equal to del f of I plus 1. जिसे हम मान लेते हैं 1. तो we have shown the first part कि this portion is equal to this one. Now what we are going to prove? We are going to prove next this is equal to some any this one or this one, एक ही बात. So see how we will do. So second one,
what we are going to prove? Del f I plus half. What it means? It means del f of x I plus half. ठीक है, ये जैसे हमने यहाँ पर किया तो दिस इज, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हम लगा देंगे। ये है आपका सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर? I write down here so that you remember. The formula is delta f of xi is equal to f of xi plus h by 2 minus f of xi minus h by 2. This is the formula, and we want to find out f of xi plus half. So xi will be replaced by xi plus half. So this will becomes f of, ये जो है एज इट इज i प्लस हाफ प्लस h बाई टू माइनस f ऑफ एक्स आई प्लस हाफ माइनस h बाई टू। ठीक है, अब आप में से कोई मुझे बताओ इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? जिसने ये मुझे बता दिया समझो उसको समझ में आ गया। कहाँ है कर्सर? ठीक है, मुझे आपको ये बताना है कि ये जो पोर्शन है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ। यहाँ पर f ऑफ, आगे यहाँ क्या लिख सकता हूँ बताओ? किसी को तो बताना पड़ेगा, है ना? चंचल, आप बताइए यहाँ क्या आएगा? देखो ये क्या लिखा है, यहाँ एक्स आई प्लस हाफ लिखा है। ठीक है, माइक ऑन रहने दीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, देखिए तभी सब। हाँ, तो आई प्लस हाफ में इसका मतलब क्या है? एक्स आई एक पॉइंट है, ये तो क्लियर है। अब उसमें मैंने प्लस हाफ कर दिया, उसका मतलब क्या है? एक्स आई पॉइंट में कितना एडिशन है? हाफ, यानी कि एच बाई टू। जैसे यह मैं आपको समझाता हूँ इस जगह के। जैसे ये हमारे पास एक्स आई है, ये एक्स आई प्लस वन है, ठीक है, वन। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है हमारी? एच। तो अगर मैं यहाँ एक्स आई को, ये एक्स आई है, ये एक्स आई प्लस वन है, तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ एक्स आई प्लस हाफ, तो ये कहीं यहाँ बीच में पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस हुई हमारी, ये डिस्टेंस हुई एच बाई टू। क्लियर हुई या नहीं हुई? यस। हाँ, अब अगर मैं इस पॉइंट में एच बाई टू और ऐड कर देता हूँ, ये वाली डिस्टेंस एच बाई टू ऐड कर देता हूँ, तो ये कौन सा पॉइंट बन जाता है? फिर से सुनो, फिर से बताता हूँ। हाँ, ये एक पॉइंट है यहाँ पर, है ना, ये एक्स आई, ये कौन सा पॉइंट है? एक्स आई प्लस वन बाई टू। अब मैंने इसमें एच बाई टी डिस्टेंस और ऐड कर दी। ठीक है, जैसे एक सेकंड रुको, मैं दोबारा से समझाता हूँ, वहाँ थोड़ा सा गोच पोच हो गया। अगर यहाँ पर थ्री है और यहाँ पर फोर है, ये मैं आपसे कह रहा हूँ 3.5। अब 3.5 में अगर मैं 5.5 ऐड कर देता हूँ, तो ये कौन सा पॉइंट पहुंच जाता है? फोर। यही चीज यहाँ पर हो रही है। जैसे सपोज करो ये एक्स आई है, ये एक्स आई प्लस हाफ है, इसमें मैंने हाफ और ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया? एक्स आई प्लस वन। ये तो बना। यही हम यहाँ पूछ रहे थे कि एक्स आई प्लस हाफ में जब एच बाई टू हम ऐड कर देते हैं तो कौन सा पॉइंट बन जाता है? वो बन जाता है एक्स आई प्लस वन। कन्फ्यूजन कहाँ हो रही है?
हाँ, मैं अभी समझ गया हूँ कि आप सभी को कहाँ कंफ्यूजन हो रही है। वो मैं अभी बताता हूँ इसको पूरा करने के बाद। ठीक है, तो ये हो गया आपका एफ एक्स आई प्लस वन माइनस, अब यहाँ क्या आएगा बताओ मुझे। नहीं नहीं, और कोई बताइए। अ, ठीक है, यहाँ है, चलो आपने बता दिया। एफ एक्स आई बिल्कुल सही। और ये किसकी डेफिनेशन है हमारी, ये है डेल फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एफ एक्स आई। ठीक है, ये आ गया। तो दिस इज इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन वन एंड टू से ये हमने जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो। किसी को कोई डाउट है तो पूछो बेटा, पूछो आप प्लीज, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो। जब तक समझ में ना आ जाए पूरा, आप मुझे आगे नहीं पढ़ने दीजिए। ठीक है, अभी जो आपका कुछ नहीं पूछ रहा है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ फिर। देखिए, जो आपका डाउट आ रहा है सब, मुझे आपसे बात करके लगा, वो ये देखिए, समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दिस इज एक्स टू, दिस इज एक्स थ्री। तो लिखने का तरीका क्या है? एक तो तरीका ये है कि इस एक्स टू को ही, ये एक्स टू है, एक्स थ्री को मैं लिख सकता हूँ, मैंने आपको बताया भी था, एक्स टू प्लस वन, इस तरह भी मैं लिख सकता हूँ। या फिर देखो कैसे मैंने बताया, अब एक्स आई के रूप में समझो। ये अगर मैंने एक्स आई बोल दिया इसको, एंड आई से दिस इज एक्स आई प्लस वन। ठीक, इसको लिख सकते हैं हम एक्स आई प्लस। क्लियर? तो वही चीज़ यहाँ पर हम कर रहे हैं, एक्स टू ये रहा, और यहाँ इसे लिख सकते हैं एक्स टू प्लस वन। क्योंकि ये न्यूमेरिक है इसलिए टू प्लस वन को आप यहाँ पर थ्री लिख देते हैं, आई प्लस वन को आप आई प्लस वन ही रहने देते हैं। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ क्लियर हो गया होगा सबको। अब एच पंगा कर रहा है। एच क्या चीज़ है? h is the distance between x2 and x3। h is the distance between x2 and x3। इसी को x3 को मैं ये भी लिख सकता हूँ x2 प्लस एच। ठीक है, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, एक्स आई और एक्स आई प्लस वन है, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ एक्स आई प्लस एच। किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो। तो कंफ्यूजन कहाँ हो रहा है, कहीं पे तो एक्स आई प्लस वन लिखा जा गया, कहीं पे लिखा जा रहा है एक्स आई प्लस एच। उसकी वजह से आपको कंफ्यूजन हो रहा है। तो अब आप अच्छी तरीके से समझिए किसका मतलब क्या है, एक बार अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ना, तो फिर लिखने में दिक्कत नहीं है। ये केवल तभी तक आती है जब तक हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से, आई वांट टू। तो प्लीज जहाँ भी डाउट है पूछो मुझसे। मैं रेंडमली किसी एक से पूछ लेता हूँ। साची, सांची, प्लीज बताएं आपको ये क्लियर हो गया? क्या डाउट है बताइए। ओके, वेरी गुड। ओके, वेरी। और किसी को, बेटा आप, मैं एक एक करके तो नहीं पूछ सकता हूँ, तो आप प्लीज़ किसी को अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आई हो तो प्लीज़ पूछ लें। चलिए, तो फिर नेक्स्ट प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंडली हम क्या प्रूफ करने वाले थे? सेकंड, वी आर गोइंग टू प्रूव डेल इज इक्वल टू ई माइनस वन, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एंड शिफ्ट ऑपरेटर के बीच में रिलेशन। तो डेल, व्हाट इज इट मीन्स? ऑलवेज रिमेंबर, डेल मीन्स एफ ऑफ एक्स आई। किसी पे तो ये लगेगा कि सिंस इट इज ऑपरेटर, राइट डाउन द फॉर्मूला, एफ ऑफ एक्स आई प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स आई। इक्वेशन नंबर वन। यहाँ लिखा है ई माइनस वन, वट इट मीन्स, ई माइनस वन, और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स आई। फिर इसमें इसे आप लिख सकते हो, इट इज ई एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई।
शिफ्ट ऑपरेटर का फॉर्मूला लगा दीजिए. व्हाट इट मीन्स? एफ ऑफ एक्स आई प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स आई. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो बाई 1 and 2 you can easily write del is equal to e minus 1. किसी को कोई डाउट हो इस प्रूफ में तो बताइए. कोई डाउट नहीं. तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम. नाउ वी वांट टू प्रूव del is equal to 1 minus e inverse. ठीक है, वी आर गोइंग टू प्रूव दिस. तो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज इक्वल टू बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ओवर एक्स आई. दिस इज इक्वल टू फॉर्मूला लगा देते हैं. एफ आई एफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस एच. 1. नाउ 1 माइनस ई इनवर्स. ये ऑपरेटर है तो किसी न किसी पे तो ऑपरेट होगा. तो ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई माइनस ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स आई. ठीक है, फॉर्मूला क्या है आपके पास? ई ऑफ एफ ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई प्लस 1 या एक्स आई प्लस एच. तो इसी तरीके से अगर कहीं पे ई इनवर्स आ जाता है, ई इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स आई, दैट मीन्स इट इज एफ ऑफ एक्स आई माइनस एच. ठीक है, तो दिस विल बी, यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस एच. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो बाई 1 and 2 we can write del is equal to 1 minus e. This is proof has been done. Any doubt to you? कोई डाउट नहीं. Next we move to next proof. Okay, what we are going to prove here? Del f of xi is equal to f of xi plus h by 2 minus f of xi minus h by 2. We have to prove this one. Okay. Oh sorry, ये नहीं है. हमें प्रूफ करना था डेल इज इक्वल टू ई हाफ माइनस ई माइनस हाफ. वी आर गोइंग टू प्रूव दिस वन. तो डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स आई is equal to, just for write down the formula, f of xi plus h by 2 minus f of xi minus h by 2. Equation number 1. Now right hand side लेते हैं. e half minus e minus half f of xi. This is equal to e half f of xi minus e minus half f of xi. याद कीजिए, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ई शिफ्ट ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स आई के ऊपर लगता था तो ये क्या होता था? एच डिस्टेंस आगे चला जाता था, यानी कि एफ ऑफ एक्स आई प्लस एच हो जाता था. इसी तरीके से अगर ई माइनस 1 लिखा है एफ ऑफ एक्स आई, तो ये एच डिफरेंस पीछे चला जाता था, एफ ऑफ एक्स आई माइनस एच. इसी तरीके से अगर कहीं पे हाफ लिखा है एक्स आई, तो क्या होगा? एफ ऑफ एक्स आई प्लस एच बाई 2 हो जाएगा, एंड सो ऑन. तो वही चीज़ यहाँ पर होने वाली है. तो इसे हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स आई प्लस एच बाई 2 माइनस एफ ऑफ
xi minus h by 2, equation number 2. By 1 and 2, we can easily write delta is equal to e half minus e minus half. ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। कोई डाउट इसमें आपको अभी तक? कोई डाउट? चलिए फिर हम लास्ट फार्मूले को प्रूव करते हैं। क्या है हमारा लास्ट फार्मूला? लास्ट फार्मूले में प्रूव करना है डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 ई टू द पावर हाफ प्लस ई टू द पावर माइनस हाफ। तो कर देते हैं प्रूफ। डेल्टा f of xi, just write down the formula. This is f of xi plus h by 2 minus f of xi minus h by 2, इक्वेशन नंबर 1। अब राइट हैंड साइड लेते हैं। 1/2 e हाफ प्लस e माइनस हाफ f of xi is equal to 1/2 e half f of xi plus half e minus half f of xi. Write down the formula. This will be 1/2 f of xi plus h by 2 plus 1/2 f of xi minus h by 2. This is equation number 2. तो एक सेकंड, कुछ ये गलत हमने ले लिया ना। यहाँ पर डेल्टा नहीं था, यहाँ पर था म्यू ऑपरेटर। ओके, और यहाँ पर भी म्यू आएगा, तो म्यू विल बी बिकम्स, दिस इज द फॉर्मूला फॉर म्यू। ठीक है, और यहाँ पर आएगा आपका प्लस। नाउ इट इज ओके। तो वी कैन राइट बाई 1 and 2 म्यू इज इक्वल टू 1/2 ई हाफ प्लस ई माइनस हाफ। ठीक है, तो एक बार पढ़ के देखिए, कोई डाउट है तो पूछिए। कविता, कविता माइक ऑन कीजिए। क्लियर है आपको? चलिए ठीक है, आप क्लास सुनिए दूसरी। और कौन बताए? अंकिता आप बता दीजिए।